ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক, সাধক, ধর্মগুরু এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক সংস্কারক শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ ঠাকুর 1896 সালে তার পুত্র ললিতা প্রসাদের কাছে একটি চিঠির আকারে তার আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যেটি তার ছেলে 1916 সালে কেদারনাথ দত্তের মৃত্যুর 2 বছর পর পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম মুদ্রণের পর বইটি আর ছাপা হয়নি, অথচ এটিই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কারকের জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৈষ্ণব ভক্ত, গবেষক ও অসংখ্য বাঙালি পাঠকদের কথা মাথায় রেখে বইটি নতুনভাবে প্রকাশিত হল ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে। কলকাতার গুরু সদয় রোডে ইস্কন হাউসে গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্কনের সহসভাপতি রাধারমণ প্রভু, গভর্নিং বডি কমিশনের গৌরাঙ্গ প্রভু, ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ডক্টর সুমন্ত রুদ্র ও প্রকাশিত পুস্তকের সম্পাদক ডক্টর শান্তনু দে। গৌরাঙ্গ প্রভু বলেন, স্বরচিত জীবনী গ্রন্থটি সারা বিশ্বজুড়ে সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পুস্তক। তাই এই বইকে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। অটোবায়োগ্রাফি অফ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, এই বিখ্যাত প্রমিনেন্ট 19th সেঞ্চুরি ইন্ডিয়ান ফিলোসফার, সেন্ট, রিলিজিয়াস গুরু এন্ড স্পিরিচুয়াল রিফর্মার গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্তর ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী একটা চিঠির রূপে ছিল। না ছেলে ললিতা প্রসাদকে 1896 লিখেছিলেন। This was published in the form of a book by his son in 1916 বছরে, 2 years after death of Kedarnath Datta. কিন্তু এই বইটা লুপ্ত হয়ে গেছিল আর আউট অফ প্রিন্ট ছিল এই বইটা after the first publication, despite the fact this was the only authentic source about his life and activities of Gaudiya Vaishnava reformer. Therefore, keeping in the minds of the interest of Vaishnava devotee, researcher and numerous Bengali readers, এই বইটা আবার থেকে নতুন ভাবে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আর দেশ পাবলিশিং এই বইটাকে প্রিন্ট করেছে এইবার, আর যেটার আজকে লঞ্চ হচ্ছে। আজকে আমাদের ডায়াসে আছে এস্টিম গেস্ট, ওদের ইন্ট্রোডিউস করে দিই। ডক্টর শান্তনু দে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির আর এডিটর এই বইটার স্বরচিতা জীবনী। গৌরাঙ্গ দাস মহাপ্রভু, মেম্বার অফ ইসকন গভর্নিং বডি কমিশনার এন্ড ডাইরেক্টর ইসকন জিভি। রাধারমণ দাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসকন কলকাতা এন্ড কমিউনিকেশন হেড ইসকন। আর উদ্দালোক দে, ওনার্স অফ দেশ পাবলিশার। আর আমি ট্রাস্টি এন্ড ডিন ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারে। এইবার আমি রিকোয়েস্ট করছি ডক্টর শান্তনু দেকে কিছু বইয়ের বিষয় কি আছে বলতে, তারপরে গৌরাঙ্গ প্রভু ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের বিষয় বলতে। তিনি বৈষ্ণব আন্দোলনের যে সীমিত অবস্থা, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সময়কালে যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে তিনি একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং সেই আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করা, আধুনিক করা এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে মায়াপুরে যে আজকের দিনে যেখানে চৈতন্য জন্মস্থান হিসেবে যে জায়গাটা নির্ধারিত, সেটা নির্ধারণকরণের জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রথম। তার ফলে তিনি 19বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার, বিভিন্ন ধরনের পুস্তক আকারে চৈতন্য আন্দোলনের যারা প্রাণ পুরুষ গোড়ার দিকে, তাদের ধর্মীয় তত্ত্বকে সবার মধ্যে নিয়ে আসার এবং তার মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই যে একটা সাংগঠনিক দিক থেকে গৌড়ীয় আন্দোলন যে 19বিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে একটা বড় ভূমিকা নিতে পেরেছে, তার তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, যিনি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারও পরে আমরা ভক্তি বেদান্ত স্বামীকে, যাকে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমরা জানি, তার কিন্তু এই ধারাবাহিকতাটাকেই বজায় রেখেছেন। ধন্যবাদ আপনাদের আজকে এখানে আসার জন্য। এবং এই গ্রন্থটি আমার অন্তত মনে হয় সম্পাদক হিসেবে যে সাধারণ বাঙালি পাঠক এবং যারা গবেষক, তারা সকলেই এর মধ্যে অনেক নতুন তথ্য খুঁজে পাবেন। ধন্যবাদ। ভামদম নামদম মুদা ভক্তিগম শক্তিগম বন্দে भक्ति विनोदकम सदा। ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए आज केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित
स्वलिखित जीवनी, उनकी आत्मकथा को इस्कॉन कलकत्ता के गुरु सदाई में भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर और डॉक्टर शांतनु के सौजन्य से इस ऐतिहासिक ग्रंथ के विमोचन में मैं आप सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 1838 में ठाकुर भक्ति विनोद जी का कलकत्ता के हाथ खोला दत्त परिवार के उनके ही संप्रदाय में आनंद चंद्र दत्त और जगन मोहिनी देवी के घर पर जन्म हुआ। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब लोग खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी वास्तविक महानता उनके संपूर्ण जीवन और उनके कार्यों और योगदान के बाद पता लगती है। ठाकुर भक्ति विनोद 1844 से 1852 के बीच उनका नाम केदारनाथ दत्त था और बंगाली पाठशाला और अंग्रेजी स्कूल वीरनगर और कृष्णनगर में उन्होंने पढ़ाई की। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठकर आता है, वो ये कि मानव जीवन में संपत्ति और विपत्ति अनिश्चित रूप से हमारे जीवन में आती चली जाएगी। किसी भी व्यक्ति का, यहाँ तक कि भगवान राम और कृष्ण का भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार के विपदाओं के ऊपर, विपत्तियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन इन सभी समस्याओं को जूझते हुए, झेलते हुए, सहन करते हुए सामान्य व्यक्ति और महापुरुष के अंदर ये अंतर होता है कि महापुरुष समस्त विपत्तियों के सागर में भी पूरे आशावाद के साथ वो क्रांतिकारी कार्य करते चले जाते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद या केदारनाथ दत्त जी के जीवन में कई समस्याएं आई, पारिवारिक समस्याएं आई, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत पीड़ाएं और बहुत समस्याएं आई, लेकिन 1852 और 1857, 1852 और 1857 के बीच में वो कलकत्ता में आकर हिंदू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन स्कूल और बाद में 2 वर्ष हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की, जहां पर वो अलग अलग मिशनरी और ब्रह्मो समाज आंदोलन के अग्रणियों के संपर्क में आए। 1857 से 1894 के बीच का दौरा बड़ा महत्व का रहा, जब उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कार्य किए, जिसमें कभी वो स्कूल टीचर बने उड़ीसा में, कभी वो बर्दवान में जमींदारी बने, जमींदारी की, और फिर देखते ही देखते स्कूल टीचर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ विभिन्न एग्जाम पास करके वो डेप्यूटी कलेक्टर और डेप्यूटी मजिस्ट्रेट अंग्रेज सरकार में बन गए। और 1868 के आगे, 1868 के आगे ये केदारनाथ दत्त जो बाहरी रूप से देखने पर लग रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डेप्यूटी कलेक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, गृहस्थ हैं, जिनके 11 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर समाज में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी एक आध्यात्मिक चरित्र प्रदर्शित करते हुए समाज में क्रांति ला सकता है। You can be a man of this world and still be a spiritual revolutionary and spiritual practitioner with your family। ये उन्होंने प्रदर्शित किया और तब सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का चरित्र केदारनाथ दत्त के अंदर से उभरने लगा। पूरे विश्व को चौंका देने वाला ऐसा चरित्र, विभिन्न प्रकार के वैदिक ग्रंथ, आचार्यों की टीका, दिन रात वो लगे रहे। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तो वो अपने कलेक्ट्री और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम में लगे रहते थे, लेकिन रात्रि के समय केवल 2 घंटा सोते हुए वो हजारों हजारों ग्रंथों को इस प्रकार पूरी तरह पचा लिए
और उसके बाद उन्होंने लिखा ग्रंथ जैसे जैव धर्म, कल्याण कल्पतरु, श्री कृष्ण संहिता, श्री हरिनाम चिंतामणि, प्रेम प्रदीप, शरणागति इत्यादि 120 के ऊपर उन्होंने ग्रंथ अपने जीवन काल में लिख डाले अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ। 1869 में दिनाजपुर में उन्होंने बड़ा ही प्रसिद्ध एक वक्तव्य दिया, कथा दिया, और इसका ट्रांसक्रिप्शन निकल के आया, द भागवत, इट्स फिलॉसफी, एथिक्स एंड थियोलॉजी। और वैष्णव मार्ग में महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं, इस पर उन्होंने चर्चा की। 1870 में ठाकुर भक्ति विनोद ने अपना ट्रांसफर जगन्नाथपुरी में करवाया और वहां पर उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन को और सुदृढ़ किया। उसमें कई क्रांतिकारी कदम लिए, जिसके कारण जो दर्शनार्थी थे उनको बहुत सहूलियत मिली। 1880s के माध्यम से उन्होंने सज्जन तोषणी नाम का ग्रंथ, जर्नल, जो कि भक्ति का ज्ञान भद्रलोक के बीच किस तरह स्थापित किया जाए, और 1891 में उन्होंने हरिनाम का महिमा सामान्य लोगों के बीच और नामहट्टा गोतुर्माश्रम नवद्वीप में स्थापित किया। और इस प्रकार 1885 में ठाकुर भक्ति विनोद को, केदारनाथ दत्त को यह नाम दिया गया बागपारा गोस्वामियों के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति के कार्यों में आनंदित हो और दूसरों को भी आनंद दें। और 1894 में कई वैष्णव भक्तों के समर्थन से उन्होंने श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभा ये स्थापित किया और उन्होंने नवद्वीप धाम महात्म्य लिखा। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आरंभ के श्लोक में कहा, गुरुदम ग्रंथदम गौर धामदम, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित करने में ठाकुर भक्ति विनोद का बड़ा महत्वपूर्ण एक योगदान रहा और उनको ये श्रेय जाता है। और वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद स्वयं एक बड़े ही विनम्र भिक्षुक के रूप में बंगाल के एक एक नागरिक के पास जा जाकर, चाहे कोई अर्थहीन हो या बड़ा धनाढ्य हो, उनसे उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से विनम्र होकर योगदान लिया। भिक्षुक बनकर उनसे याचना करके, भले किसी ने 4 आना दिया, किसी ने लाखों रुपए दिए, उनसे ये लेकर योगपीठ का मंदिर स्थापित किया। 1914 में ठाकुर भक्ति विनोद, जो कि अपने अंतिम कई दिन जगन्नाथपुरी में बिताए भजन करते हुए, वहां पर उन्होंने अपने भजन के लिए एक स्थान स्थापित किया और वहां पर कई वर्ष भजन करने के बाद फिर वो कलकत्ता में भक्ति भवन में आए और 1914 में ठाकुर भक्ति विनोद भगवत धाम को प्राप्त हो गए और अपनी लीलाओं को समाप्त किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने 1896 में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कार्य किया। वो ये कि लॉर्ड चैतन्य, हिज टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स, ये किताब अंग्रेजी में प्रकाशित करके उसे मैकगिल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, जो कि कनाडा में है, वहां पर पहुंचाया। 1896 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि 1896 में श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य का जन्म हुआ कलकत्ता में। और उसी वर्ष ये लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स बाय ठाकुर भक्ति विनोद पहुंच गया वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में। अर्थात ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा के एक आशीर्वाद के रूप में भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये अभय चरण देव, जो कलकत्ता में 1922 में उल्टा डंगा जंक्शन रोड में अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रथम बार भेंट किए
और उस प्रथम भेंट में ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय चरण डे को देखकर कहा, "You are an intelligent young man. You should preach the knowledge of Lord Chaitanya in the English language all over the world." श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में आप प्रचारित कीजिए, ये उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया। इस निवेदन को श्रील प्रभुपाद अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने एक आदेश के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हुए 1922 में जो मिले, 1933 में उनका दीक्षा हुआ और उनका नाम मिल गया अभय चरण दास करके। और उसके बाद 1944 में उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन आरंभ किया अंग्रेजी में। 1951 में श्रील प्रभुपाद जी वानप्रस्थ लिए। 1966 में वो इस्कॉन की स्थापना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना न्यूयॉर्क में किए। और 1966 और 1977 के बीच में ठाकुर भक्ति विनोद की प्रेरणा से, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा था कि वो दिन कब आएगा जब अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, रशियन और विश्व के कोने कोने के विभिन्न राष्ट्रों के लोग एकत्रित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के इस हरिनाम आंदोलन को लेते हुए जय सच्चिनंदन गौर हरि मायापुर धाम में कब ये महामंत्र का जय घोष होगा, इस प्रकार का स्वप्न ठाकुर भक्ति विनोद ने देखा था। और वो विशाल मंदिर जो कि नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, वो मायापुर में कब तैयार होगा, ये मिशन ठाकुर भक्ति विनोद का था, जिसको एक संस्था का रूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रारंभ के दिनों में श्री गौड़ीय मठ के रूप में 64 गौड़ीय मठ भारत में स्थापित किए। उसी मिशन को लेकर श्रील प्रभुपाद जी 1966 और 77 केवल 11 वर्ष के एक लिमिटेड सीमित अवधि में उन्होंने 108 विश्व के कोने कोने में मंदिर स्थापित कर दिए, हर कॉन्टिनेंट में। और 80 के ऊपर देशों में 108 मंदिर और 103 मंदिर भारत के बाहर। उस समय 5 मंदिर भारत में, जो कि कलकत्ता, मायापुर, दिल्ली, वृंदावन, मुंबई और हैदराबाद, ये 5 मंदिर 1977 तक थे। लेकिन आपको जानकर बहुत आनंद होगा कि 1977 के बाद आज इस्कॉन की पूरे विश्व भर में 750 मंदिर, भारत में लगभग 350 मंदिर, 120 रेस्टोरेंट, 70 फार्म कम्युनिटीज। और पिछले 55 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता विश्व भर में वितरित कर दी। और प्रतिदिन भारत के स्कूलों में 30 लाख प्लेट प्रसादम हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वितरित कर रहे हैं। समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से लोगों को परिवर्तित करके उनको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, टू मेक पीपल स्पिरिचुअली अब्सॉर्ब, सोशली सेंसिटिव एंड पॉलिटिकली अलर्ट। एंड दिस वे वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर Thakur Bhaktivinoda's contribution to establish the blueprint for how a philosophy and spirituality can become the platform for the transformation of the individual, which will ultimately transform the communities and transform the whole world. Grateful to Dr. Shantanu De for taking the effort to bring this excellent academically accredited edition. Thanks to Dr. Sumanta Rudra, जो कि भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर के डीन हैं और कलकत्ता के सारे एकेडमिक कम्युनिटी से दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करवाते हैं। और हजारों हजारों ग्रंथ जो कि अब खो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, उनका जीर्णोद्धार करके, उनको स्कैनिंग करके, उनको अपलोड करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व के भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व में केवल जीडीपी की चर्चा हो रही है, लेकिन जीडीपी ही चलता रहा तो धीरे धीरे संस्कार नष्ट हो जाएगा। हम मार्केट में जाकर पैसे दे के कार खरीद सकते हैं, पैसे दे के संस्कार नहीं खरीद सकते। आज अमेरिका जैसे इतने प्रगतिशील राष्ट्र में 45% बच्चे विवाह के बाहर, आउट ऑफ वेडिंग, पैदा हो रहे हैं। क्या हमको ऐसा समाज चाहिए? क्या हमको ऐसा पारिवारिक परिस्थिति चाहिए? जब तक संस्कारों का संरक्षण नहीं होगा, बहुत ही शीघ्र पूरा परिवार और पूरा समाज जर्जर हो जाएगा। इसलिए भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर, जिसका बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है कि हम
संस्कारों को बचाए रखे और भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर और इस्कॉन विश्व भर में इस संस्कार के संरक्षण के कार्य में लगा हुआ है। और मैं इस्कॉन कलकत्ता के वाइस प्रेसिडेंट श्री राधारमन दास, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। डे पब्लिशर्स का भी बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मिलकर इस ठाकुर भक्ति विनोद की जीवनी को, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, शुद्ध बंगाली में जो लिखी गई है, इसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने निजी जीवन में प्रेरणा ले सकता है, सामाजिक क्रांति में प्रेरणा ले सकता है और वैश्विक शांति में प्रेरणा ले सकता है। इसको लोगों तक प्रकट करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया, आप सभी का मैं इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन की ओर से मैं साधुवाद करता हूँ, पूरी पूरी धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी का जीवन ऐसे ही सन्मार्ग पर चलता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो लोग देखे बोलबो देश पब्लिशर्स এর থেকে দূর। নমস্কার সকলকে। এখানে আমাদের ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের সাথে জড়িত হয়ে ভালো লাগলো আর কি, যে আমরা এমন একটা বই আনতে পেরেছি যেটা ডিভোটিসদের জন্য বা যারা রিসার্চ করবে তাদের সাথে তাদের কাজে লাগবে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন স্পিরিচুয়াল লাইফের দিক দিয়েও অনেক মোটিভেশন দিতে পারে এই বইটা। তো আশা করি আপনাদের এই বইটা পড়ে একবার একটা রিভিউ দিন বা কেমন লাগছে সেটা একটু জানালে আমাদের খুব ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। এছাড়া আমাদের এটা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বইটা পেয়ে যাবেন। आशा करी आश्रम থাকবে এই বইগুলো সব भाषा में इसको प्रकाशित किया गया है। और आपको जान के हर्ष होगा कि अगले वर्ष इसी समय लगभग हम लोग यहीं पर इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों लॉन्च करेंगे। तो बहुत ही शीघ्र इंग्लिश और हिंदी और बाकी अन्य भाषाओं में इसको प्रकाशन करने की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और उसमें डॉक्टर शांतनु जे इंग्लिश ट्रांसलेशन लीड कर रहे हैं। एक बार उन्होंने इंग्लिश में कर दिया, फिर अन्य भाषाओं का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में भी करेंगे 100%, क्योंकि आपको पता होगा इस्कॉन का अपना एक पब्लिशिंग हाउस है जिसका नाम है भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल, BVT। उसके अंतर्गत 80 लैंग्वेजेस में हम लोगों का ऑलरेडी पब्लिकेशन हुआ है। तो हम लोग के पास बड़ा ट्रांसलेशन का टीम है। एक बार सर ने इंग्लिश में कर दिया, बाकी इंडियन एंड ग्लोबल लैंग्वेजेस का जिम्मेदारी इस्कॉन ले।